Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and share these videos with your friends who are preparing for PTE. And if you need any kind of help like online classes and offline classes, then you can contact me. My number is given in the description box. Now in today's video I'm going to discuss the most important task of the speaking section, that is read aloud. Because मेरे पास जो students हैं they have some difficulties in read aloud. Read aloud is the simplest task of the speaking section and you can get good score in read aloud. And if you are getting good score in the read aloud, then automatically you will get good score in the reading section of PTE as well, because read aloud is contributing 22 points in the speaking section and same 22 points in the reading section as well. So the content of the read aloud will contribute in the reading section, and the pronunciation and the fluency of the read aloud will contribute in the speaking section. So first you have to understand what is the task and how you can get good score in read aloud. Because in the read aloud task is this: you will get a paragraph on your screen and you will get 35 seconds for preparation, and during preparation you have to speak same as you going to speak after the beep sound. Because you have to remember, in read aloud you will hear a beep sound after 35 seconds, and after the beep sound you will start speaking. Because if you are starting speaking before the beep sound, then your response will not be recorded. So always start speaking in the read aloud after the beep sound. And after the beep sound means if you are waiting and you are watching outside and your concentration level is not good in case of speaking section. So if you are starting speaking after 3 seconds, then your mic will automatically get off and you will get lowest score like 10, because the lowest score in PTE is 10, not 0. Means if you are speaking after 3 seconds, then you will get 10 points for that particular question, and it can impact your score for the further questions as well. Because AI is going to check your exam, it's not any person involvement in your exam, so do it carefully. सो सबसे मीन्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि इफ़ यू आर गेटिंग लो स्कोर इन स्पीकिंग, देन हाउ यू विल नो कि आपका रीड अलाउड में स्कोर कम है. How you can check your score? So when you will get your score like in the PDF form, but below the PDF form you have a skill profile, means you are getting your score in the skill profile as well. Because the score is for speaking, then reading, then writing and listening section, means you will get score out of 90. But how you can check कि आपका read aloud में score कितना है? So if you want to check your score in the particular task like read aloud, then you have to check your reproducing spoken. नोट इट डाउन कि आपने अपना रीप्रोड्यूसिंग स्पोकन का जो स्किल प्रोफाइल है वो चेक करना है कि इफ़ योर ब्लू बार इज़ गुड, मीन्स इफ़ इट इज़ कंप्लीटिंग द लाइन, इट मीन्स योर रीड अलाउड इज़ गुड. बट इफ़ द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश, देन उनके पास क्या होता है कि जब वो प्रेपरेशन करते हैं तब उनका स्कोर अच्छा आता है, बट जब वो फाइनल में जाते हैं तो उनका स्कोर अच्छा नहीं आता. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि रीड अलाउड में आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी स्क्रीन पे पैराग्राफ गिवन है, जस्ट आपको वो रीड करना है. सो अगर आप रीड भी नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स योर प्रोनंसिएशन इज़ नॉट गुड, इट मीन्स योर फ्लुएंसी इज़ नॉट गुड, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने वर्ड्स को कैसे पढ़ना है. सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आप अपनी जो फंबलिंग है, अपना जो फियर है, वो उसको कैसे कम कर सकते हो. सो मैं सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे पास कोचिंग लेते हैं तो मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है गिव योर इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में ये हो सकता है कि जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो तो आप अपनी इंट्रोडक्शन हाफ पेज की प्रिपेयर करो, सो दैट यू कैन मीन्स यू कैन गिव इंट्रोडक्शन इन 1 or 2 minutes.
सो इफ़ यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन इन 1 minute देन यू विल फील कॉन्फिडेंट. तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो अटैम्प्ट करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और आपका जो फंबलिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि रीड अलाउड इज़ द फर्स्ट टास्क ऑफ द PTE. सो अगर आपकी फंबलिंग रीड अलाउड में कम होगी, आप कंफर्टेबल होगे, तो जो नेक्स्ट टास्क हैं उनमें भी आपकी जो फंबलिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. एंड इफ़ यू आर गेटिंग लोएस्ट स्कोर इन स्पीकिंग तो चेक योर रीप्रोड्यूसिंग स्पोकन कि आपका उसमें स्कोर कम तो नहीं है. इफ़ यू आर गेटिंग लो स्कोर इन द रीप्रोड्यूसिंग स्पोकन इट मीन्स यू आर लैकिंग इन रीड अलाउड. सो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रीड अलाउड. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने रीड अलाउड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो. सो रीडिंग इज़ द ओनली वे टू इम्प्रूव योर रीड अलाउड. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग PTE, तो जब भी आप रीड अलाउड करते हो तो उसके बाद जब आप रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करते हो, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करते हो, देन रीड दैट पैराग्राफ्स ऑल्सो, बिकॉज सम टाइम you will get the question from that context. Means you can also get that type of context like reading and writing filling the blanks and reading filling the blanks. So जब भी आपने रीडिंग करनी है, if you are weak in English, तो जब भी आपने रीडिंग करनी है तो वो बोल के रीडिंग करनी है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो वो AP यूनि पे करते हो, तो उस टाइम जो आपकी स्पीड है वो डिफरेंट है. आफ्टर दैट आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे आप गुरुली से कर रहे हो, TCY से कर रहे हो, PTstudy.com से कर रहे हो, किसी और ऐप से कर रहे हो, देन यू आर चेंजिंग योर स्पीड कॉन्टीन्यूसली. मीन्स अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर यू आर चेंजिंग योर स्पीड. मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग लो score then you will change your speed. कि I think I am not getting good score in the fluency, then I have to change the speed so that I can get good score. But this is not the way. So you have to speak in your natural pace, not too fast, not too low. Because अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हो तो भी आपकी जो वॉइस है वो पिकअप नहीं होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो, आई मीन बहुत ज़्यादा फास्ट, नॉट फास्ट, तो भी क्या होता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो मडल हो जाते हैं. तो सम टाइम जो कंप्यूटर है वो आपके वर्ड्स को, आपकी प्रोनंसिएशन को नहीं पिकअप कर पाता. सो हम एग्जांपल्स भी करेंगे, उसमें मैं आपको अपना स्कोर भी दिखाऊंगी कि इवन सम टाइम मेरे भी जो स्कोर्स हैं वो लूज़ होते हैं रीड अलाउड में. सो ऑटोमेटिकली हमारे स्कोर कम हो सकते हैं इफ़ वी आर चेंजिंग अवर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. बिकॉज जब भी आप रीड अलाउड करते हो तो आपको सबसे पहले ये जो नोट है वो मिलता है. लुक एट द टेक्स्ट बिलो. In 35 seconds you must read this text aloud as naturally as clearly as possible. Means you have कि बच्चे क्या होते हैं कि अगर वो प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एक्सेंट अपना चेंज करते रहते हैं. मीन्स दे आर लिसनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियोज एंड दे आर चेंजिंग देयर एक्सेंट एज वेल एंड चेंजिंग देयर स्पीड्स एज वेल अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर. सो आई विल रिकमेंड यू कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एट योर ओन, अगर आप ऑन प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने ऑनलाइन लिया है, तो आप अगर किसी और से भी कंसल्ट कर रहे हो, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन टीचर. सो ऑटोमेटिकली दे consult with their friends, they consult with other teachers also. So I will suggest you कि आपने अपनी जो स्पीकिंग की फ्लुएंसी है, अगर आप फास्ट बोल रहे हो तो किसी के कहने पे आपने उसको स्लो नहीं करना है, और अगर आप ठीक बोल रहे हो तो किसी के कहने पे आपने उसको फास्ट नहीं करना. बिकॉज ऑटोमेटिकली आपने ही पेपर अटैम्प्ट करना है, तो आप जितनी फास्ट बोल रहे हो दैट इज सफिशेंट. मीन्स इफ़ you can speak fluently then speak it, बट आई सजेस्ट यू कि आपने वर्ड्स को मडल नहीं करना है, तो आपने अपनी फ्लुएंसी उतनी रखनी है. दिस इज़ द वे. मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ने बोल दिया कि तुम बहुत फास्ट बोल रहे हो तो पेपर में अपनी फ्लुएंसी को चेंज करो, देन डोंट डू इट. बिकॉज ऐसा होता है कि हम किसी के सजेशंस लेते हैं, देन हमारे जो स्कोर्स हैं वो कम आते हैं. सो अपनी स्पीकिंग में आपने एक अपनी अलग से फ्लुएंसी मेंटेन करनी है इन विच यू आर कंफर्टेबल. क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो जब हमने पॉज नहीं लेना होता, तो जो हमारा
वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं होते, मीन्स बच्चे बोलते हैं कि मुझे सांस चढ़ रहा है, आई कांट स्पीक। सो उसके अकॉर्डिंग आपने फ्लुएंसी अपनी मेंटेन करनी है कि इफ़ यू आर गेटिंग ओनली वन लाइन एंड देयर इज़ नो फुल स्टॉप इन बिटवीन द लाइन्स, देन हाउ you can speak it. So maintain that fluency. So work on that fluency. So किसी भी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज नहीं करना. नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑन अल्फ़ा PTE. सो लेट्स चेक इट कि ये हमें जो स्कोर है वो किस तरह से देता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं. लेट्स डू इट. So in case if you have any doubts in the case of read aloud, then you can write in the comment box, but I will suggest you maintain your own pace, means in which you are comfortable. So work on your fluency and also work on your pronunciation if you are weak in English, because if your pronunciation is not good, then you can't get good score in the read aloud. So this is the main reason you are getting score in the mock test but you are not getting score in the final PTE test. So let's start this कि आपने बोलना कैसे है. यू कैन ऑल्सो राइट कि आप फास्ट बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, देन हाउ आई कैन चेंज. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स. So this is the preparation time and here it is 22 seconds left. So already I am already done it. So मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, बट जब भी आप प्रेपरेशन में पढ़ते हो तो आपने अलाउड ही पढ़ना है so that you can easily speak in the final time. From here you can start it. Your tutor helps you make the most of your time at university by giving you guidance and support along the way. All new students are allocated a personal tutor who will encourage you to get the most out of your course, direct you to other sources of support and help you achieve your goals. So here you can stop. And this is the submit button. And this is my score. Speaking 89 and reading it's 86. Now in reading I am getting 86 but in speaking I am getting 89. But अगर आप मेरे यहाँ पे words बोल रहे हो, देख रहे हो, then here it is 54 words. So 54 words में जो bad और missed words हैं वो 0 words हैं. So अल्फ़ा PT में क्या होता है कि अगर जो भी जिसकी स्कोर जिस इंटरसेक्शनल जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमें शो करता है. तो यहाँ पे मेरा जो स्कोर स्पीकिंग का है वो 89 है. तो स्पीकिंग में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्लुएंसी और प्रोनंसिएशन में 5 आउट ऑफ 5 है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेड वर्ड नहीं है. सो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से बोला है. सो मैं बहुत फास्ट भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आई कांट स्पीक फास्ट, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फास्ट बोल सकते हैं बट आई कांट स्पीक वेरी फास्ट. सो मेरी जो नेचुरल पेस है वो यही है, मैं इसी पेस के साथ बोलती हूँ. सो उसी अकॉर्डिंग मेरा जो फाइनल में स्कोर आया था वो भी अच्छा आया था. सो ये रीडिंग सेक्शन में कंट्रीब्यूशन जो करी है वो हमारी कंटेंट पार्ट ने करी है. कंटेंट मीन्स जो वर्ड्स यहाँ पे गिवन है. सो दिस इज योर स्पीच. तो अल्फ़ा पीटी पे आपकी स्पीच जो रिकॉग्निशन है वो भी वहाँ पे शो करता है कि आप बोल कैसे रहे हो. सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. To some extent, attendance at cultural venues and events is influenced by a person's age and the composition of the household in which they live. For example, those people in households with dependent children were more likely to visit zoological parks and aquariums than people living in single-person households. सो बच्चे क्या होते हैं कि समटाइम वो फंबल हो जाते हैं प्रैपोजिशन. ऐड को टू बोल देते हैं, इसको द बोल देते हैं, ऑफ को फॉर बोल देते हैं. तो इस चीज़ में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो लिखा है आपने वही बोलना है. To some extent, attendance at cultural venues and events is influenced by a person's age and the composition of the household in which they live. For example, those people in households with dependent children were more likely to visit zoological parks and aquariums than single people living in single-person households. So इसमें हमारे पास I think 2 ही full stop हैं. You can take pause here. And after that here you can also take pause here, and this is my speech recognition. So let's check the score. So now it's 79
In speaking and in reading it's 82. In content I am getting 85, that's why I am getting good score in the reading section. But in fluency it's 76 because I was confused in here. So this is the pronunciation 4.5 out of 5 because total words are 50 and good words are 47 and missed words are 3 words. So I mean to say कि you have to work on your fluency as well, because if your fluency is good then you can get good score in the स्पीकिंग सेक्शन. सो फंबलिंग का कोई भी आपके पास परसेंट नहीं होना चाहिए कि मैं फंबल हो सकता हूँ. फंबल को रिमूव करने का मैंने आपको वे बताया कि गिव योर इंट्रोडक्शन बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट कंफर्टेबल फॉर द फर्दर क्वेश्चंस. सो after that, if you have any doubts, any queries, any suggestions, then you can write in the comment box. And for more updates you can follow my YouTube channel @AmarPTE classes. Share these videos with your friends. Then goodbye, take care.